Hello everyone, this is Aniket Deshmukh. Welcome you all in second session of unit number 2 of rotary compressor. Today we are going to discuss about our first positive displacement type blower, that is root blower, or you can say lobe blower. Basic equation of root blower we will see, and on the basis of basic equation we will see numericals on root blower. Okay. So how root blower work and how it is constructed, that we will see. So in the construction and working of root blower, we are having a video. Here you can see we are having two rotors in a closed casing. Okay, from left side it is a suction side and right side is a discharge side, and you can observe the density difference of red dots. Okay, from suction side it is less dense, and in discharge side it is dense, more dense. Okay, so basically this blower is not compressing anything. Okay, ये जो compressor है ये क्या कर रहा है, just push कर रहा है. It is just pushing air to the receiver side. रिसीवर मतलब जहाँ पे भी आप उसको स्टोर करेंगे, जहाँ पे वो रिसीव होगी, जैसे कि स्टोरेज टैंक कैन बी ए रिसीवर. तो जो रिसीवर में वन बाय वन आप इसको पुश कर करके एयर जमा करेंगे, तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ एयर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ एयर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा. ओके, दिस इज हाउ दिस ब्लोअर वर्क. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, we are having the diagram. So in this diagram, see, in construction what we are having, we are having a case. Okay, we are having a case. Now ये जो केस का शेप है ये सर्कुलर है. ओके, दो सर्कल्स है जो ज्वाइन किए हैं बीच में. सो ये तो ना तो पूरा सर्कल है ना इलिप्स है, ये दो सर्कल है जो अटैच है, तो इसको आप कैप्सूल शेप बोल सकते हो. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इट इज इनक्लोज्ड विथ रोटर्स. ओके, केसिंग, तो जो इसके अंदर प्रेजेंट है, these are rotors. So we are having two rotors over here like this. Okay, so this is our one rotor, and these one rotors are having two lobes, lobe number 1 and lobe number 2. Okay, so one rotor having two lobes. So in this kind of diagram, जो आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कितने रोटर्स हैं? Two rotors are there and total 4 lobes are there. Okay, in one compressor or blower, root blower. Okay, so ये हुआ आपका टू लोब ब्लोअर. इसको अगर आप बोलेंगे तो हाँ, टू लोब ब्लोअर. अगर वही आप ये देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 लोब्स मिलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम 3 लोब blower. Okay, why? Because it is having 3 lobes like this. Okay, so this is 3 lobe blower, and in black and white diagram you can see this is 2 lobe blower. So in construction what we can say, a closed casing having 2 rotors and 2 lobes connected by gear. तो जो ये दो रोटर है, रोटर नंबर 1, पहला रोटर जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, एंड सेकेंड जो आपको वर्टिकल दिख रहा है. ओके, सो ये दोनों कनेक्टेड है बिहाइंड द केसिंग विद द हेल्प ऑफ गियर्स. ओके, सो गियर्स क्या करते हैं, इन दोनों को सिंक में रोटेट करते हैं. सो इफ यू विल बी ऑब्जर्विंग कि एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल है, मतलब ये जो है
बाय 90 डिग्री लैग करता है। मतलब अगर ये फॉलोअर है, ठीक है, कोई भी एक जो अगर फॉलोअर है तो वो दूसरे को 90 डिग्री से लैग करेगा, और हमेशा ये पोजीशन इनकी फिक्स रहेगी। ठीक है, कोई भी डायग्राम आप देख लो तो ये 90 डिग्री से लैग करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग कि जो कंस्ट्रक्शन में आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, देयर इज नो स्पेस बिटवीन casing and lobe over here. Over here you can see, then in between two lobes, and here also vertical lobe, there is no space for leakage in between rotor or lobe and casing. Okay, it is very important because if we are having leakage, this will not be able to push air for receivers section. ठीक है, तो वो सील होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ सी कंस्ट्रक्शन में क्या है, नीचे से इनलेट है, एयर अंदर आएगी, अप साइड आपको डिस्चार्ज पोर्ट मिलता है गोइंग टू द रिसीवर। दो रोटर्स यहाँ पे है, रोटर 1 एंड रोटर 2, और जो दोनों रोटेट करते हैं। तो एक रोटर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, both are connected by gears behind the casing having lag of 90 डिग्री। मतलब एक अगर 0 डिग्री पे है तो दूसरा 90 डिग्री पे होगा, एक अगर 180 डिग्री पे है तो एक 270 डिग्री पे होगा। तो ऐसे ये हमेशा 90 का डिफरेंस बना के चलेंगे। ओके, एंड ये जो शेल है ये इसको पैक रखता है, मतलब जैसे कि कोई भी रोटर है, रोटर और केसिंग के बीच में लीकेज ना हो उसके लिए स्पेस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो पूरा पैक होता है। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ रूट ब्लोअर। नाउ सी वी आर हैविंग 6 डायग्राम ओवर हियर, जिसमें आपको फेज बाय फेज इसका वर्किंग शो किया है। ओके, इन डायग्राम नंबर 1 वी आर हैविंग 2 lobes. Okay, so this is the empty diagram, but if we are having air in initial part of section process, so section process में डायग्राम बी, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली एयर यहाँ पे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो एयर जो है वो दोनों साइड में ट्रेवल करेगी ऐसे। ठीक है, डायग्राम नंबर 3 में आप देख पाएंगे। और जैसे ये वर्टिकल पोजीशन ले लेगा तो एयर जो है वो यहाँ पे आएगी और कुछ एयर जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, अभी डायग्राम में बस एक सेक्शन दिखा है एक साइड में। ठीक है, बट एयर जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगी इधर में। ठीक है, फिर जब ये और रोटेट होगा क्लॉकवाइज में तो एयर जो है वो पास होगी टू द डिस्चार्ज पोर्ट। ठीक है, डिस्चार्ज पोर्ट से रिसीवर्स एंड तक वो जाएगी। ठीक है, बट वन थिंग जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिवर्स डायरेक्शन में एरो दिया है। ठीक है, एक एरो आपको ये डायरेक्शन में मिलता है। तो ये एरो का मीनिंग क्या है, दिस इज नॉट द डायरेक्शन फॉर फ्लो ऑफ एयर, दिस इज फॉर द डायरेक्शन ऑफ बैक प्रेशर अप्लाइड। बैक प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, रिसीवर। फॉर एग्जांपल ये आपका रिसीवर है, यहाँ पे कनेक्टिंग शो कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे आप एयर जो है वो स्टोर कर रहे हो। तो इनिशियली तो जब एयर आएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगी और आप उसमें कंटिन्यूसली एयर जो है वो ऐड कर रहे हो। इसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है कांस्टेंट, एंड इफ यू आर हैविंग एडिंग कंटिन्यूसली एयर इनसाइड तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज हाउ प्रेशर राइजेस। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रूट ब्लोअर कॉम्प्रेस कर रहा है एयर को, रूट ब्लोअर बस एयर को पुश कर रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट पुशिंग द एयर टू द रिसीवर। ओके, तो ये कभी भी एयर को कॉम्प्रेस नहीं करता है। इसका अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो प्रोसेस विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, बस प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर P1 होगा,
और रिसीवर का प्रेशर होगा जो बैक प्रेशर अप्लाई होगा, दैट विल बी P2. Okay, so process will be constant volume process and pressure difference will be at the both end, suction port and discharge port. ठीक है, suction port में जो pressure होगा that will be atmospheric pressure और initial pressure you can say, and at the end discharge port पे receiver जो back pressure apply करेगा उसका pressure होगा P2. Okay, this is how your root blower work. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं और ये जो है आपका एयर को पुश करते रहेंगे. ठीक है, सो नाउ वी विल सी कि हाउ योर प्रोसेस इज गोइंग. ठीक है, इफ वी आर हैविंग वॉल्यूम ओवर हियर एंड प्रेशर ओवर हियर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है एंड वर्टिकल एक्सिस पे प्रेशर. तो इनिशियली वॉल्यूम होगा V1. ठीक है, सो एक प्रोसेस होगी जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2, इनिशियल प्रेशर P1 एंड फाइनल प्रेशर P2. ठीक है, सो इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर. सो यहाँ पे जो है वो जो प्रोसेस चल रही है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ओके, अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू V dP. वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है, प्रेशर. ओके, अब ये नॉर्मल है, अगर सिस्टम को वर्क मिल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम को वर्क मिल रहा है मतलब एनर्जी गेन हो रही है. बट अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब लो ब्लोअर इज वर्किंग ऑन एयर, तो एयर इज सराउंडिंग. ओके, एंड योर सिस्टम इज compressor, that blower. ओके, सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सो यहाँ पे आएगा माइनस साइन. ठीक है, इससे क्या होगा, माइनस साइन आने से एनर्जी लॉस हो रहा है, ये आप शो करेंगे. बाय विच यू कैन से कि एक्चुअल वर्क विल बी इक्वल टू V1 which is initial volume, P2 final pressure minus P1 initial pressure. So this will be your work done. ठीक है, so this work done will be actual work done. Work done, अब वर्क डन का WD कंप्लीट नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्चुअल वर्क डन. ठीक है, बट वेन एवर यू विल सी, ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और कॉम्प्रेशन प्रोसेस जो आप कंसिडर करते हो थियोरेटिकली दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो थियोरेटिकल वर्क डन आपको मिलेगा. सो थियोरेटिकल वर्क डन जो आपको मिलता है ये हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी देखा है, दैट इज प्रोसेस इज लाइक PV raised power gamma equal to constant. Okay, and this is like gamma upon gamma minus 1. ऊपर वाला थोड़ा R जैसा दिख रहा है, gamma minus 1 P1 V1 P2 by P1 gamma minus 1 upon gamma minus 1. This will be your isentropic process, work done by isentropic process. So this is your gamma. gamma की वैल्यू जो होती है that is 1.4 होती है. ओके, नाउ इन दिस केस अगर आपके पास थियोरेटिकल वर्क डन है और एक्चुअल वर्क डन है तो थियोरेटिकली वर्क डन तो कम लगेगा, एक्चुअली वर्क डन थोड़ा ज़्यादा लगता है. सो इन दैट केस इफ यू आर लुकिंग फॉर द एफिशिएंसी ऑफ compressor or blower you can say, so it will be isentropic work done, theoretical work done आप बोल सकते हो TH upon actual work done. ठीक है,
इसको अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे theoretical input or isentropic input to the actual work given to the system. ठीक है, so you can write it like theoretical जो है that is this divided by gamma minus 1 p1 v1 p2 by p1 gamma minus 1 upon gamma minus 1 divided by p1 v1 p2 minus p1. Here also you can take p1 common from the system. ओके, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि जस्ट मिनट। कि अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेशर रेशियो के फॉर्म में, सो इन फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो आप लिख सकते हो, ये गैमा जैसा दिख रहा है अभी, स्मॉल आर सफिक्स पी, दिस विल बी योर प्रेशर रेशियो। सो प्रेशर रेशियो मतलब क्या होता है, P2 by P1 इक्वल टू प्रेशर रेशियो। Okay, so you can just replace it, compressor efficiency equal to gamma upon gamma minus 1 P1 V1 P2 by P1 gamma minus 1 upon gamma minus 1 divided by P1 V1, P1 कॉमन निकाला है, सो यहाँ पे P2 by P1 होगा, और P1 ऑलरेडी यहाँ पे था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और P2 by P1 की जगह पे हम कंप्रेशन रेशो रख सकते हैं, प्रेशर रेशो, ठीक है। सो गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 प्रेशर रेशो रेस्ट पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1 डिवाइड बाय प्रेशर रेशो माइनस 1, ठीक है। सो दिस विल बी योर कंप्रेसर एफिशिएंसी। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अभी तक आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, एक कंप्रेशन प्रेशर रेशियो के फॉर्म में, एक जो है वो आपको सिंपल है W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल दैट इज कंप्रेसर एफिशिएंसी, एक थ्योरेटिकल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से वर्क डन आता है वो फॉर्मूला, एंड एक एक्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको रूट ब्लोअर में देखने को मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूलाज वी विल सी अ न्यूमेरिकल। So we are having a numerical, first numerical we are having, we'll see what is given. So a root blower compresses 1 meter cube of air per second, 1 meter cube of per second volume दिए हैं, from a pressure of 1.01325 bar to 1.8 bar, ठीक है, initial pressure and final pressure दिए हैं, find the power required to run the compressor and its efficiency. So यहाँ पे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे आपको क्या दिया है, आपको एक वॉल्यूम दिया है V1 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, प्रेशर दिया है इनिशियल प्रेशर P1 दैट इज 1.01325 बार, जिसको आप बोल सकते हो 101.325 किलो पास्कल,
ठीक है। P2 1.8 बार मीन्स 180 किलो पास्कल्स। ठीक है, इसको जस्ट आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब बार में बार का वैल्यू जो है वो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तीन ही वैल्यू आपको दी है। और एक जैसे कि आपको पता है कि जैसे अगर आप आइसेंट्रोपिक वर्क डन लिखेंगे तो गैमा की वैल्यू आती है 1.4, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, नाउ सी आपको क्या पूछा है, आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, वर्क डन एक्चुअल, ओके, पावर रिक्वायर्ड टू रन। अब पावर जिसको आप बोल सकते हो इंडिकेटेड पावर, ठीक है, और वर्क डन दोनों सेम होंगे कब, अगर इसका यूनिट होगा किलो जूल पर सेकेंड में। ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड अगर है तो ये कन्वर्ट होगा वैट में। ठीक है, किलो वैट में आप इसको ले सकते हो, फिर किलो वैट में अगर आपका आंसर आता है तो वो पावर ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट इज द इफिशियंसी एंड efficiency of compressor. Okay, so easy numerical है, we'll start with the actual work. So work done actual कितना है, V1 P2 minus P1 which is equals to, अब V1 की वैल्यू तो 1 है, मल्टीप्लाई बाय P2, P2 की वैल्यू है 180 माइनस 101.325। ठीक है, सिंपली सब्ट्रैक्शन प्रोसेस आपको करनी है। ये अराउंड कुछ तो भी 78.35 कुछ तो भी आना चाहिए। ठीक है, सो वर्क डन इज, इसका आंसर आता है 78.675 किलोवाट। ठीक है, अब एक आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया जो आपको पूछा था, W एक्चुअल हो गया। अब इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर चाहिए, तो इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर, उसका फॉर्मूला होता है W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल। सो W थ्योरेटिकल जो होता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से मिलेगा आपको, है ना। सो W थ्योरेटिकल इक्वल टू गैमा अपॉन गैमा माइनस 1 P1 V1 P2 बाय P1 गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको W मिल जाएगा थ्योरेटिकल। तो गैमा की वैल्यू होती है 1.4, 1.4 माइनस 1, P1 है आपका 101.325 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। P2 है आपका 180 डिवाइड बाय 101.325, रेस्ट पावर में आपका आएगा 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 और यहाँ पे आएगा माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो वर्क डन मिलेगा थ्योरेटिकल वर्क आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज 63.28 किलोवाट। ओके, अब आपके पास थ्योरेटिकल वर्क डन है, एक्चुअल वर्क डन है, सो इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, सो W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल, so 63.28 divided by 78.675। इसकी अगर आप रेशो निकालेंगे सो इट विल बी अराउंड 0.8043। ये फ्रैक्शन में है, अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो और यू कैन से कि ये है 80.43%। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 100 से। ठीक है, सो दिस इज योर efficiency. Okay, I hope this numerical is clear.
आपको सिंपली क्या करना था, वर्क डन फाइंड आउट करना था और एक इफिशियंसी फाइंड आउट करनी थी। वर्क डन एक्चुअल आपने फाइंड आउट कर लिया एक्चुअल फार्मूला से, एक्चुअल वर्क डन के फार्मूला से, which comes around 87.6 something, and then you calculate the efficiency के लिए आपको एक्चुअल एंड थेरोटिकल वर्क डन दोनों चाहिए थे, तो आपने थेरोटिकल वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने कैलकुलेट किया है आपका इफिशियंसी। ओके, we'll move toward our next numerical. 1 kg of air per second is taken into a root blower. 1 kg of air, mass of air आपको दिया है, वॉल्यूम अभी नहीं दिया है। Then at 1 bar and 27 degrees Celsius, temperature and initial pressure is given. The delivery pressure of air is 1.5 bar P2. Okay. Calculate the rotor power, sorry, motor power. Motor power मतलब actual work done आपको चाहिए, required to run the compressor if mechanical efficiency is 80%. Mechanical efficiency is 80% मतलब अभी क्या है कि देखो आपके पास अभी तक क्या था, कंप्रेसर की इफिशियंसी, ठीक है। और कंप्रेसर की इफिशियंसी जो होता है, जैसे कि आपने एक थ्योरेटिकल वर्क डन दिया और उससे आपको एक्चुअल वर्क डन कितना लगा, तो वो जो होता है दैट इज टू ओवरकम द पार्ट्स फ्रिक्शन, ठीक है। बट मैकेनिकल इफिशियंसी जो होती है, मैकेनिकल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन द, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, वो डिपेंड करेगी कि जैसे अभी इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इस पे, ठीक है। तो अगर आपको इतना पावर लग रहा है तो ये जो है वो थ्योरेटिकल पावर है, ब्रेक पावर इज एक्चुअल पावर, तो इसको बोला जाता है मोटर, मोटर पावर, ठीक है। ब्रेक पावर जो एक्चुअल में लग रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इंडिकेटेड पावर इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। कंप्लीशन प्रोसेस है जो भी आपका ब्लोअर कर रहा है वो करने के लिए वो लगेगा, बट उसमें जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उसका वेट, स्लाइडिंग पार्ट या फिर मूविंग पार्ट्स है, वो वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, वो जो लॉसेस है वो अगर आप इंक्लूड करते हैं तो इंडिकेटेड पावर प्लस लॉसेस विल बी योर मोटर पावर विच इज एक्चुअल, ठीक है। तो उसकी इफिशियंसी जो दी है वो है 80%। मतलब अगर आपका ब्रेक इंडिकेटेड पावर अगर 80 है तो ब्रेक पावर जो है वो 100 होगा, ठीक है, क्योंकि ये कितना है 80%। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 100% कितना पावर लग रहा है, मोटर पावर जिसको बोलते हैं हम मोटर पावर, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे कि जैसे मैकेनिकल इफिशियंसी दी है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी में जैसे कि इसका फॉर्मूला जो होगा वो IP अपॉन BP होगा, ठीक है। तो ये बात अलग है, कंप्रेसर की इफिशियंसी कैसे निकालते हो आप, W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल, तो ये थ्योरेटिकल जो आता है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से आता है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन और एक्चुअल वर्क डन आपका वो V1 ब्रैकेट में P2 माइनस P1 से आता है, बट मैकेनिकल इफिशियंसी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये कंप्रेशन प्रोसेस की इफिशियंसी होगी, कंप्रेसर की एक्चुअल इफिशियंसी आएगी कि मैकेनिकल इफिशियंसी से, ठीक है। तो ये दोनों आपको अगर कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर और इफिशियंसी ऑफ मैकेनिकल इफिशियंसी, तो ओवरऑल इफिशियंसी आपको मिलती है, ठीक है। सो आई थिंक अभी आपको मोटर पावर पता चल गया होगा। मोटर पावर मतलब क्या है, मैकेनिकल इफिशियंसी ऐड करने के बाद जो आता है वो मोटर पावर, मतलब जो पावर लग रहा है आपको एक्चुअल में, उसमें अगर आप ऐड करेंगे लॉसेस तो वो होगा मोटर का पावर, ठीक है। सो सी व्हाट इज गिवन, सो गिवन आपको है कि 1 kg ऑफ एयर, मास ऑफ एयर 1 kg, ठीक है, पर सेकेंड। प्रेशर दिया है P1 विच इज 1 बार, मतलब 100 kPa। टेम्परेचर दिया है T1 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन,
डिग्री केल्विन। ठीक है। फिर क्या दिया है, P2 दिया है, P2 इज 1.5 बार, दैट इज 150 kPa। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको कैलकुलेट करना है आपका मोटर पावर। ठीक है। मोटर पावर के लिए पहले तो आपको चाहिए एक्चुअल पावर। एक्चुअल पावर अगर आप निकालेंगे, मतलब एक्चुअल वर्क डन, तो W एक्चुअल विच इज V1 P2 माइनस P1, बट उसके लिए आपको चाहिए वॉल्यूम V1। V1 की वैल्यू तो आपके पास है नहीं अभी, तो अगर आप V1 कैलकुलेट करेंगे तो V1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 इक्वल टू MART1। ठीक है। सो P1 जो है वो एक साइड लेके जाओ। ठीक है। सो यहाँ से P1 निकल जाएगा, तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगी, वॉल्यूम की वैल्यू। मास ऑफ एयर 1, आर की वैल्यू आपको पता है 0.287 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय प्रेशर P1 कितना है, kPa में 100। ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है। अब वॉल्यूम की वैल्यू कितना आएगा, 0.867, सॉरी नॉट 7, इट्स 1। ओके। यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि मास जो था दैट वाज केजी पर सेकेंड। ठीक है। तो इसीलिए इसका जो यूनिट आएगा दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके। सो अब आपके पास वैल्यू है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। 0.861, P2 कितना है 150 माइनस P1 कितना है 100। सो ऑब्वियसली ये 50 आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो आपको आपका वर्क डन मिल जाएगा। सो वर्क डन विल बी 43.05 किलो वैट। ठीक है। दिस इज योर वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन है आपका IP, इंडिकेटेड पावर। एक्चुअल वर्क डन इज योर IP। Okay. Now if you want to calculate the motor power, which is your brake power, जिसको आप बोलते हो BP, so that will be available with the help of mechanical efficiency. Mechanical efficiency equal to indicated power upon brake power, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट ब्रेक पावर। ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी है, वो दी है आपको 80%। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 80% लिखेंगे कि 0.08 लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे, तो आपको लिखना चाहिए 0.8, बिकॉज परसेंटेज जो है वो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करके मिलता है। ठीक है। सो न्यूमेरिकल में जब भी आप इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। सो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे दैट इज़ 0.8। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ब्रेक पावर, तो ये होगा IP अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपका है 43 पॉइंट कितना आया था, 0.05 डिवाइड बाय 0.8। ठीक है। सो ये आपका एक्चुअल मोटर पावर निकलेगा विच इज़ अराउंड 53.81 किलोवाट। ठीक है। सो दिस इज योर मोटर पावर।
ओके, सो मोटर पावर आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी. मोटर पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर. ओके, so this is all for today's session. What we have discussed today, we have discussed root blower or lobe blower today. In what aspects? We have seen construction and working here. Video we have seen. In working we have discussed it is not compressing anything, it is just pushing the fluid. Okay, then process we have seen constant volume process. So उसका वर्क डन, एक्चुअल वर्क डन हमने कैलकुलेट किया. थेरोटिकली ये प्रोसेस का जो वर्क डन आता है वो थेरोटिकल आइसोट्रोपिक प्रोसेस से आता है, तो उसका वर्क डन आपके पास है. थेरोटिकल वर्क डन टू एक्चुअल वर्क डन अगर रेशियो लेंगे तो वो कंप्रेसर एफिशिएंसी आएगी. ठीक है, और उसको आप प्रेशर रेशियो के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. ठीक है, नाउ यहाँ पे जब आप इसको डिस्कस कर लेते हो कि रूट ब्लोअर के बेसिक इक्वेशंस, तो बेसिक इक्वेशंस यही है. ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया. But these are the numericals based on the root blower. So numerical 1 we have seen and numerical 2 we have seen. ठीक है, thank you.